Assalamu alaikum, students. This was supposed to be a live class, but due to some obstacles, I'm recording it. Uh, I hope you will watch the video completely and will learn what is intended. So today we are going to work on future simple tenses, and not only we are going to work on affirmative sentence, but also on negative and interrogative sentences. So the first structure is for affirmative sentence, and we see that if the subject is I and we shall use the word shall. The helping verb shall will be used here, and with all the other subjects we will use the word will. So will and shall are the two different helping verbs that I used here. So the distribution in future simple is not according to the singular subject or plural subject. है ना? Like we saw in present simple. है ना? Here we see in affirmative sentence singular subject will have verb plus ses, ies, or if the subject is plural, then there will be only verb one, no ses, ies. So the distribution here tells us that in present simple it is singular subject and plural subject. Okay, but in future simple it is the use of shall and will. है ना? So the shall is the word shall is used on very few occasions. There are only two occasions where we use shall for future simple, and that is I and we. Okay, so these are the two subjects we use the word shall for. तो इसको हम सेंटेंस में यूज कर लेते हैं. तो I shall play with you, है ना? और we shall come early tomorrow. Okay, तो ये दो so these are the two types of uh, uses, types of subjects we will use with shall, and both of them are first person. I and we, both of them are first person. Then with in future simple we have the use of will. So the distribution is very clear. I and we will be used with shall, and all the other subjects means all the nouns, be it uh, a proper or a common or collective or any kind of noun. Okay, all the nouns will use will. Okay, and all the pronouns except I and we. Okay, pronouns में कौन कौन से होंगे? He, she, it, you, and they. So these are the pronouns that you can use, uh, that you will have to use will with, and all the nouns है ना. Nouns का example ले लेते हैं हम
कि प्रॉपर नाउन है तो आप उबैद ले लीजिए, है ना, या फिर वसीम, या फिर राहुल, है ना, या फिर आयशा, सीता, है ना। ये प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हो गए। इसके साथ आपको विल का यूज करना है। कॉमन नाउन हो गए जैसे कि बॉय, या फिर गर्ल, या फिर आप स्टूडेंट, टीचर, मदर, फादर, है ना। ये तो अ, इंसानों के नाम लिखे हैं मैंने सारे, है ना। आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं कॉमन नाउन में, सॉरी प्रॉपर नाउन में। जैसे कि एक ऑप्शन हो सकता है रेडियंस स्कूल, है ना। रेडियंस स्कूल हो सकता है, रेडियंस इंग्लिश मीडियम स्कूल पूरा नाम भी हो सकता है। और यहाँ कॉमन नाउन में वर्ड स्कूल भी हो सकता है ना, सिटी भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है ना। तो देयर आर मैनी थिंग्स जो आप मैनी थिंग्स मीन्स इन्यूमरेबल, आप काउंट नहीं कर सकते उनको, इतनी है। तो जिनके साथ आपको विल यूज करना है वो तो बहुत सारी हैं। तो हमारे लिए बेहतर है कि हम आई और वी को और दूसरे सब्जेक्ट्स को अलग अलग रखें, है ना। तो सबके साथ हमको, अच्छा इसमें सिंगुलर प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसा कि प्रेजेंट सिंपल में था, मैंने आपको बताया था दैट इन प्रेजेंट सिंपल वी सी दैट विद सिंगुलर सब्जेक्ट वी आर यूजिंग verb plus ses, ies, and plural subject we are not using anything except verb one. So that was the case with present simple, but with future simple there is no such thing. There is no division of singular or plural. You can say boy will study, or you can say boys will play. Okay, तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रख रहे हैं या आप प्लूरल सब्जेक्ट रख रहे हैं, इन दोनों ही केसेस में विल के यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि विल की जगह हमको कोई और वर्ड यूज करना पड़ेगा अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट लेकर आते हैं तो ये याद रखने वाली चीज है आपके लिए, ठीक है। और अब थोड़ा सा इसके देख लेते हैं कि इसको अपनी लैंग्वेज में हाउ टू आइडेंटिफाई इन हिंदी, है ना। फ्यूचर सिंपल को हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करना है मैंने आपको पहले बताया भी है, फिर यहाँ बता रहा हूँ। गा, गी, या फिर गे, ये वर्ड आपको ढूंढना है अपनी लैंग्वेज में इन हिंदी, अगर आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल जो सेंटेंस मैंने ऊपर लिखे हैं हम उन्हीं को ट्रांसलेट कर लेते हैं। बॉय विल स्टडी, या बॉयज विल प्ले, या आई शैल प्ले विद यू, या वी शैल कम अर्ली टुमारो। ओके, मैं इन चारों सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ। तो आप उसमें देखिएगा कि वर्ड जो गा की गे है वो किस तरह से आखिर में आ रहा है, एंडिंग इस तरह से हो रही है सेंटेंसेस की। तो आई शैल प्ले विद यू का मीनिंग होगा कि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। और जो दूसरा सेंटेंस है वी शैल कम अर्ली टुमारो, कल हम जल्दी आएंगे, या हम कल जल्दी आएंगे, ये भी कह सकते हैं आप। और इसके बाद जो है बॉय विल स्टडी, लड़का पढ़ेगा। और आखिरी सेंटेंस बॉयज विल प्ले का हो जाएगा, लड़के खेलेंगे। तो ये आप देख रहे हैं
कि जो एंडिंग है वो यहाँ गा पर हुई, यहाँ गे पर हुई, फिर यहाँ गा पर और यहाँ गे पर। अगर हम गी का यूज भी देख लेते हैं, एक अगर आप सेंटेंस बनाते हैं शी विल स्टे, अगर आप करते हैं तो वो हो जाएगा कि वो रुकेगी, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा, वो रुकेगी। तो इस तरह से आप अगर इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपको आसानी हो जाएगी, है ना? बाकी फ्यूचर का मतलब क्या होता है, आने वाले इवेंट्स के बारे में जो चीजें आप कहना चाहते हैं, आने वाले वक्त के बारे में आप जब कहना चाहते हैं, है ना, या फिर आप अपने प्लान्स बताएं, है ना, कोई चीज इस तरह की जैसे कि मैं कल क्या करूंगा, है ना, मैंने कल क्या किया था, ये पास्ट हो जाएगा, है ना, मैं रोज क्या करता हूँ, ये प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। लेकिन मैं कल क्या करूंगा, ये मेरे प्लान में है ना, मैं बड़े होकर इंजीनियर बनूंगा, मैं बड़े होकर पायलट बनूंगा, मैं बड़े होकर राइटर बनूंगा, मैं बड़े होकर रिसर्चर बनूंगा, है ना, या मैं फोटोग्राफर बनूंगा, वॉट एवर इज योर चॉइस, है ना। तो जब आप प्लान बताते हैं तो वो क्या होता है, फ्यूचर सिंपल में आता है। ओके, तो इसके लिए हम फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करने का अपनी लैंग्वेज में तरीका ये है कि हम गा गी गे यूज करें। हो सकता है कि आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन आपके पास ना हो, आपको कुछ सेंटेंस बनाना हो, तो जब आपको कुछ सेंटेंस बनाना हो तो आप उन सेंटेंसेस को फ्यूचर में कहेंगे जो कि आपके प्लान्स हैं, है ना। अ, कोई चीज आप कहना चाहते हैं, जैसे आप सर से बात कर रहे हैं तो सर से आप कहना चाहते हैं कि सर मैं कल आपसे मिलने के लिए आऊंगा, है ना। तो मैं आऊंगा ये मेरे कल के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में, है ना। तो आप कहेंगे सर आई शैल कम टू सी यू टुमारो, है ना, मैं कल आपसे मिलने आऊंगा, आई शैल कम टू सी यू टुमारो। तो ये जो सेंटेंस है, ये इसका यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर की आप बात कर रहे हैं। ओके, जो भी आपके फ्यूचर के प्लान्स हैं, आपको आने वाले दिनों के जो प्लान्स हैं, हो सकता है वो कल का हो प्लान, हो सकता है कि वो अभी जो जिस सेकंड में है आप, जिस मिनट में हैं आप अभी, उसके बाद का मिनट हो, है ना, कि मैं तुमसे थोड़ी देर बाद मिलूंगा, है ना, अभी नहीं मिल सकता, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद मिलूंगा। तो आई शैल मीट यू आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, तो मैं तुमसे थोड़ी देर बाद मिलूंगा, अगर हम ये कहना चाहते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रेन 2 मिनट बाद आएगी, है ना। तो अभी जो टाइम है उसके बाद वाले टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, आने वाले वक्त के बारे में। तो हम कहेंगे ट्रेन विल कम इन 2 मिनट्स। ओके, तो फ्यूचर के यूज में हमको ध्यान रखना है कि हम आने वाले वक्त के बारे में जब बात करते हैं या अपने प्लान्स के बारे में बात करते हैं तो हम उसको फ्यूचर सिंपल में कहते हैं। ट्रांसलेशन में आपके लिए बहुत आसानी है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको गा गी गे उसके अंदर ढूंढना है। एक और जगह है जहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो है यूज ऑफ मस्ट। मस्ट वर्ड जो है हमको थोड़ा कंफ्यूज करता है। अब मान लीजिए कि हमने अंदाजा लगाया, है ना, जैसे मान लीजिए कि दरवाजे पर कुछ आवाज हुई, है ना, तो हमने कहा कि अब्बू आए होंगे।
तो यहाँ पे गा गी गे में से हमको गे दिख रहा है ना? या फिर किसी ने कहा कि बारिश अ, आज बारिश होगी, है ना? आज बारिश होगी। मतलब मैं इसका अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आज बारिश होगी। मुझे नहीं मालूम है, मुझे किसी ने आके फरिश्तों ने आके बताया नहीं है कि भाई देखो आज बारिश होगी। मैं मेरे जाने का जो फ़ैसला है, मैंने कहा कि मैं जाऊँगा, ये मेरा अपना फ़ैसला है, मुझे मालूम है कि मैं जाऊँगा। कोई मुझे ना रोक दे तो अपनी बात है। पर बारिश के होने के बारे में मुझे नहीं मालूम है कि वो होगी कि नहीं होगी। मैंने बादलों को देखा और अंदाज़ा लगाया कि आज बारिश होगी, है ना? ये मेरा अंदाज़ा है इस तरह का। तो जब हम अंदाज़ा लगाते हैं, तो हम विल का यूज़ नहीं करते हैं, हम मस्ट का यूज़ करते हैं। हमने किसी को फ़ोन किया, है ना? तो फ़ोन रिसीव नहीं किया उसने, तो हमने कहा कि वो सो रहा होगा, है ना? तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं है ना? गा, गी, गे हमने यूज़ किया, पर ये जो है ये फ्यूचर नहीं है। ये क्या है? हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो इस वक़्त क्या कर रहा होगा। ये हमारा अंदाज़ा है। इसको कहने के लिए इंग्लिश में मस्ट का यूज़ करते हैं। मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। अब्बू अ अ, मस्ट हैव सॉरी ये अ, इसको कहने के लिए हम दूसरा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। देयर मस्ट बी फादर, है ना? देयर मस्ट बी फादर, है ना? अगर हम कहते हैं दरवाज़े पर अब्बू आए होंगे तो देयर मस्ट बी फादर एट द डोर, हम इस तरह से कहेंगे। आज बारिश होगी इसको हम ट्रांसलेट करते हैं अब। तो अ, इट मस्ट रेन टुडे और वो सो रहा होगा, उसको हम ही मस्ट बी स्लीपिंग इस तरह से कहेंगे, है ना? तो जो मस्ट का यूज़ है, वो हमको किस तरह से करना है, वो आप देख रहे होंगे इसके अंदर, है ना? तो इ आपको ये समझना पड़ेगा फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट कि आप किस तरह की बात कह रहे हैं। अ, और अगर आपको लगता है कि ये आउट ऑफ श्योरिटी कह रहे हैं आप, है ना? कि आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आपने इस तरह से कहा है या इस तरह से कहना है आपको, तो आप विल का यूज़ करेंगे या शैल का। और अगर आप लग रहा है कि आपको आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, आप श्योर नहीं जानते हैं और उसमें गा का वर्ड यूज़ कर रहे हैं आप, गागीगे, तो फिर आपको उसमें मस्ट का यूज़ करना होगा, ठीक है? तो आज की क्लास में बस इतना है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please watch the video for more than once so that you can learn whatever it is intended to be. Thank you very much for watching. See you in the next class. Assalamu alaikum.